فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرکورٹ اپیلوں پر سماعت 26ویں ترمیم کے فیصلے تک سماعت مؤخر کرنے کی درخواست خارج۔ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کو 20,000 روپے جرمانہ۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ آرمی ایکٹ مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والی پرائیویٹ کمپنیز کے ملازمین پر بھی لاگو ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، وہ تو سویلین کی الگ قسم ہوتی ہے جو آرڈیننس فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، آپ کا کیس آرمی ایکٹ کی اس شک میں نہیں آتا۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا، یہ بتائیں انسداد دہشت گردی عدالتوں نے ملزمان کی ملٹری کو حوالگی کیسے دی؟ کیا ATC کورٹس کا وجوہات پر مبنی کوئی آرڈر موجود ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، ہمیں بھی چیف جسٹس منیب اختر کے تحریر کردہ فیصلے کے کچھ حصوں پر اعتراض ہے۔ کیا آپ کی ملاقات کرائی جا رہی ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا حفیظ اللہ نیازی سے مکالمہ۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا، جی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے سبب یرغمالی صورتحال سے دوچار ہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا، آپ یہاں تقریر نہ کریں، سماعت کل تک ملتوی۔ NA 262 کوٹا سے MNA عادل بزائی کو ڈی سیٹ کرنے کا 21 نومبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی نے ریمارکس دیے، پہلے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کا معاملہ طے کریں، کسی کو اسمبلی سے باہر نکال دینا معمولی کارروائی نہیں۔ کیا الیکشن کمیشن سول کورٹ کے زیر التوا معاملے پر نوٹس لے سکتا ہے؟ دوران سماعت عادل بزائی کے وکیل تیمور اسلم کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کا حوالہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، اوہو، کیا آپ واقعی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نثار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے؟ جسٹس ثقیل عباسی نے کہا، اب تو وہ کہتے ہیں ترمیم بھی آ چکی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، کیا آپ اس کیس میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نثار کر سکتے ہیں؟ کیا عادل بزائی مخصوص نشستوں والے 81 ممبران کی فہرست کا حصہ تھے؟ عادل بزائی کی اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور۔ الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس جاری، سماعت 12 دسمبر تک ملتوی۔ معزول شامی صدر بشار الاسد فیملی نے روس میں پناہ لے لی۔ بشار الاسد فیملی سمیت ماسکو میں ہے۔ صدارتی محل کے ذرائع نے تصدیق کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق روس شامی باغی گروپ سے بھی رابطے میں ہے۔ باغیوں نے روسی اڈوں کے تحفظ کا یقین دلایا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق برطانوی خبر ایجنسی کو طیارہ تباہ ہونے کی فیک نیوز اب واپس لے لینی چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا، سنا ہے شامی صدر ماسکو میں ہے۔ بشار الاسد کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں سے مل کر کام کریں گے، شام کے پڑوسیوں کی حمایت کریں گے۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کو تاریخی موقع قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اسد حکومت کا خاتمہ اسرائیل کے ایران اور حزب اللہ کو نقصان پہنچانے کا نتیجہ ہے۔ شام میں باغیوں نے ایوان صدر سمیت دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دارالحکومت میں کرفیو نافذ، دوسری جانب اسرائیلی فوج خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے شام کے اندر داخل ہو گئی۔ 1974 کے معاہدے کے بعد پہلی بار گولان کی پہاڑیوں سے آگے بفر زون میں اسرائیلی فوج تعینات۔ شام پر اسرائیلی فضائی حملوں میں بھی تیزی۔ درعا سویدہ دمشق کے قریب میزائلوں کے ذخائر اور دفاعی نظام کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، بشار الاسد حکومت کا خاتمہ حزب اللہ اور ایران سے نمٹنے کی اسرائیلی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسرائیل کسی دشمن فورس کو اپنی سرزمین پر پنپنے نہیں دے گا۔ بشار الاسد شام چھوڑنے سے پہلے مستعفی ہو گئے تھے۔ روسی حکام کا انکشاف، کہا بشار الاسد نے صدارتی محل چھوڑتے ہوئے اقتدار کی پرامن منتقلی کی ہدایت دی۔ ایران نے کہا، شام کے وقت کے ساتھ دوستانہ تعلقات جاری رہنے کا امکان ہے۔ سعودی عرب نے کہا، ترکی اور صورتحال میں شامل تمام سٹیک ہولڈر سے مستقل رابطہ ہے۔ چین شام میں حالات جلد معمول پر آ جانے کے لیے پرامید۔ مصر کی فریقین سے ملکی استحکام کے لیے کام کرنے کی اپیل۔ افغان طالبان کی بشار الاسد حکومت کے خاتمے پر شامی باغی فورسز اور عوام کو مبارکباد۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کو خوش آئند قرار دیا۔ شام میں باغیوں نے ایئرپورٹ بند کر دیا، 1200 پاکستانی زائرین پھنس گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، شام میں پاکستانی شہریوں کی سہولت کاری کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے شہریوں کی سہولت کے لیے فون نمبر اور ای میل بھی جاری کر دیا۔ ملکی
मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। तरक्की की राह पर रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इत्तफाक। जाती उम्रा में दोनों की अहम मुलाकात। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को मदारिस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा मौलाना फजल रहमान को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दी तो कोई रोक नहीं सकेगा। मौलाना फजल रहमान की वार्निंग। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुतफ़िका लाहे अमल देंगे। पेशावर में इसराइली मुखालिफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा हुकूमती इत्तेहादियों की रजामंदी से बिल पास हुआ। ऐवान सदर से बिल पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। ये बदनीयती और धोखा है या नहीं? हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। कारकुनों को काबू रखा हुआ है। शराफत से रहोगे तो हम भी शराफत से रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशराफिया आमद। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने ताउन की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन का पहला रोज़। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमे ज़राअत पंजाब और AI फोर्सटेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्सटेक के बानी और CEO से मुलाकात। मरीम नवाज ने पंजाब में जदीद ज़राई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला ने रोबोटिक ज़राई आलात का मुआयना भी किया। वज़ीर आला की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन से भी मुलाकात। महकमे मालियात पंजाब ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की तश्कील। चीफ जस्टिस ने गेंद आईनी बेंच कमेटी की कोर्ट में डाल दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी आईनी बेंच के अरकान का फैसला करेगी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि ये कमेटी खुद इस तरमीम की तख्लीक है जिसे चैलेंज किया जा रहा है। हुकूमत अब तक आईनी बेंच खुसूसन सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। आइन में नए शामिल करदा आर्टिकल 191A की शिक 3 फुल कोर्ट को किसी मामले की समाअत से नहीं रोकती। PTI ने मुज़ाकरात के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, हामिद रजा और मैं मुज़ाकरात करेंगे। हमारे 12 अफराद शहीद हुए, 200 लापता और 5000 को गिरफ्तार किया गया। शिबली फराज ने कहा हम पर जुल्म किया गया। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। असद कैसर बोले कानून में रहकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमें दहशतगर्दों की तरह दिखाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 8 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का दरखास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज होगी। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। अडियाला जेल में भी बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद होने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड केस में 342 का बयान जमा कराना है। मुस्तकबिल टिकटॉक और फेसबुक पर झूठ बोलकर तामीर नहीं होगा। हमें अपनी समत का फैसला करना है कि किस तरफ जाना चाहते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा हमारे पास वक्त और वसाइल कम लेकिन चैलेंज बड़ा है। हमें अपनी रफ्तार को माजी की निस्बत तेज करके 77 सालों का नुकसान पूरा करना है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास। पीपल्स पार्टी की कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। इजलास में मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद बदउनवानी का दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, करप्शन और बदउनवानी मुल्क की मौशी तरक्की को नुकसान पहुँचाती है। हुकूमत हर सतह पर बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। बदउनवानी के खिलाफ आलमी कोशिशों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। आवाम से बदउनवानी के खिलाफ मुहिम में हुकूमत का साथ देने की अपील। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, करप्शन सिर्फ अखलाकी ज़वाल नहीं, कौम की तरक्की का कातिल है। किसी भी सतह पर बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मंजिल बदउनवानी से पाक, तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, दो करप्ट खानदान मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। करप्ट टोले से छुटकारा पाने के लिए बानी पीटीआई का साथ देना होगा। इसराइल ने गजा में जुल्म की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर में भी बदतरीन मजालिम ढाए जा रहे हैं। आलमी बरादरी मजालिम पर खामोश है। चेयरमैन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक कहते हैं कि भारत ने यासीन मलिक को डेथ सेल में रखा हुआ है और इनको फांसी घाट पर चढ़ाने जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगीनी कबूल कर लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी, 1,10,000 की हद अबूर। इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,08,000 और 9,000 की हद भी बहाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा शहर का दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी और घरों में पानी के पाइप जम गए। कलात में पारा -7 रिकॉर्ड। गिलियात, एबटाबाद और दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मरी के नज़ारे भी दिल फरेब हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार। आज दर्जा हरारत 10 डिग्री रहने की तवक्को। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस। पसमानदा इलाके की बासलाहियत बच्ची का मुतालबा तस्लीम कर लिया। उच में गर्ल्स स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। मीरज़ादी नामी बच्ची ने वीडियो पैगाम में स्कूल के क़याम का मुतालबा किया था। पाक बहरिया का बड़ा कारनामा, हरबी तारीख का हिस्सा। 71 की पाक भारत जंग के दौरान आबदोज PNS हंगूर ने भारतीय बहरी जहाज कोकरी को समंदर में गरकाब कर दिया। 53वें हंगूर डे पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का पैगाम। कहा, पाक बहरिया ने भारतीय जहाज कोकरी को समंदर बुर्द और किरपान को मफलूज करके तारीख रकम की। ये दिन हमें हंगूर के अमले की बहादुरी, इस्तकामत और जज्बे की याद दिलाता है। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज कल से शुरू होगी। कौमी टीम की डरबे में भरपूर प्रैक्टिस। मुकामी कंडीशंस में अपनी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो मरकूज। हेड कोच आकिब जावेद ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। टीम आज भी 2:30 बजे किंग्स स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी।